मुफ्ती साहब आए ने। अगर आ जाते ने तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरहबा जी मरहबा वरहमतुल्लाहि। मुफ्ती साहब मैं इत्थे इस वजह तो खामोश हो गया सा कि अगर मेरी सलाह कर दो अगर इस गल दे विच जिहड़ी मैं गल गलत कीती है या ठीक कीती है तो अब्दुल लतीफ़ के बारे दे विच हवाला जिहड़ा लगाया सी क्योंकि मैं यही जिहड़ा सी इहदे उत्ते स्टडी कीती सी तुसीं की फरमांदे हो? नहीं, मैं तुहाडी गल सुनी नहीं। जी किहड़ी गल कीती है? ये मौलवी अब्दुल लतीफ़ अली जिहड़ा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि हज़रत ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ हुसैन तो ही अफसल कहंदा है। जी ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ आहो ਸੀ। आहो, ਜੀ ਉਹ ਆਂਦਾ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तो भी ज़्यादा अफसल शहादत है ਉਹਦੀ। बस कादियानी है, चूड़े ने। कोई गल करन वाला इन्हां दे कोल बंदा ही कोई नहीं है, कोई जां ते कोई गल करन वाला सामने आए ना ते बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल भी करे। नस भज गए ने सारे। ਹੁਣ ਤੇ ਮਲਕ वन वे ट्रैफिक है, ਜੀ वन वे ट्रैफिक। बस के जो तुसी लगे हो ना अपने ताई बैठ के तुसी बस बयान करी जाओ। रही बात कादियानी, वो नहीं किसी ने कोई सामने आना। ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਚੜ ਗਿਆ ਦਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। वो कुछ भी नहीं है, पता ही कख नहीं है। ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬੇਗਮ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ? ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਹਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹਲਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹਿਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਗ ਫੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਪਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਓ ਲਾਨਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਵਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਉਹ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਉਹਦੀ ਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਟੀਏ ਉਹ ਅੱਗੂ ਜਾਹਿਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਇਫਤਖਾਰ ਚੀਮੇ ਦੀ। ਆਂਦਾ ਐਸੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਉਹ ਬੇਬਸ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਬੇਬਸ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹਟਾਓ, ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੋਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਵਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾਨਾ। ਆ ਜਾ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਨ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਮਲਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲੇ ਇੰਝ ਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਇਤਫਾਕਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੰਡ ਲਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਿੰਜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਪ ਕੜੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ 7-8 ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਚਲਾਓ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। यूजर साहब कह रहे हैं जी बराए मेहरबानी आसान जुबान इस्तेमाल करें, लगता है उनको पंजाबी समझ नहीं आ रही। जी यूजर साहब हम कह रहे हैं कि कोई कादियानी ऐसा है नहीं कि जो आमने सामने आके बात करे, सारे ही बिल्कुल फारग, उनको पता ही कुछ नहीं है अपने दीन मजहब का, उनको पता ही नहीं है कुछ। हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा यार कोई मिर्जा जूनियर जेलमी वाले ही आ जाए, कोई तो आओ यार, कोई बंदा, कोई बात आगे चले, कोई बात बढ़े, बात से बात निकलती है फिर आगे निकलती है, हैं? आओ ना यार कोई। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। मैं सर आपके मुनाजरे ना सारा दिन काम पे होता हूँ तो सुनता रहता हूँ, मैं बड़ा हंसता हूँ आपके मुनाजरे सुन सुन के, माशाल्लाह आपने चौधरी साहब जरा रुकिएगा एक मिनट जी। राना साहब यार कमेंट ना डिलीट करें या इनको कॉल पे उठाए ना जी। चलो मैं इन्होंने चुक लेना। असल वो आंदा कोई नहीं ना, क्योंकि जमाते अहमदिया च इन्ना ते वो गुरदा है ही नहीं, ना ते कॉल दे उत्ते आ सकते ने और ना ही है जिहड़ा ना वो कोई गल कर सकते। इसका तरीका ये है कि जनाब आप बंदे को कर दें परमानेंट म्यूट और उसको डालें कॉल, ये है तरीका। तो कि मतलब अब म्यूट वो कमेंट तो कर नहीं सकता, अब उसको उसकी मजबूरी हो जाएगी कि आमने सामने आना, क्योंकि उसने गुबार निकालना है, उसने जो गाली निकालनी है। हम तो कहते हैं आमने सामने आके निकालो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आमने सामने आके बात करो। जी चौधरी साहब।
सर मैं बता रहा था कि मैं आपके माशाल्लाह मुनाज़रे सारा दिन जो है ना वो काम को सुनता रहता हूँ, और माशाल्लाह आप जैसे हवालों के साथ बात करते हैं, इनकी तो बोलती बंद कर देते हैं, एंड पे या गाली देते हैं आपको या भाग जाते हैं। तो नहीं, कोई नहीं, वो गाली का तो कोई वो एक टेंशन ही मैंने नहीं। उसका भी मैंने सुना था, वो जो इमाम मुजद्दद की क्या उसने लिखा हुआ था तलत की ब्रॉड पे, मुजरिम। मुजरिम था एक, और एक और था, उसने पता नहीं अपना नाम ही कुछ अपनी हदीस पे रखा हुआ था, मुसलमानों की हदीसों के नाम पे। अच्छा मुफ्ती साहब मैं एक गल पूछनी है, जी जी। वो अब्दुल मालिक नहीं आया है वो ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਲਹਿਦ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ मोटा, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ हाँ हाँ, वो अब्दुल कादिर, मुला। वो तो मुसलमान हो गया था ना। हाँ जी, मुसलमान हो गया। हाँ जी ते वो दोबारा नहीं उन्होंने वेखिया हैगा। ने मुसलमान भी हो गया और आजज का मुरीद भी हो गया। हाँ जी मैं ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਬੈਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ नहीं वैसे उस तो बाद ਉਹਦੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ आई नहीं कोई ऐसी हरकत, कुछ भी नहीं। मलिक भाई ये नीचे रानी आई हैं, वो आपसे बात करना चाहती हैं। सामने बैठकर बात नहीं हो सकती तो ठीक है जी, आप शीशे में जाके बैठ के देख लें उनसे बात, शीशे में आप सामने सामने बैठ के बात कर लें, कोई मसला नहीं है। असल मुफ्ती साहब बैठे ने फिर जवाब तो ये नहीं हो सकते ना बस यही तरीका है जी। हाँ जी, बात नहीं हो सकती कुत्तों के साथ, खंजीरों के साथ, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक, बस आखिरी ये हल है कादियानियों के साथ। हाँ जी, रानी राजपूत साहब कह रही हैं क्योंकि आपकी शक्लों पर लानत पड़ी है तो आप अपने सिस्टर का रिश्ता कहीं और दे लें भाई, हमारे अंदर जरूर नुक्स निकालना है आपने। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਲਓ, ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੋਪੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫੇਸ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਲ ਤੇ ਆਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਉੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। और नहीं ए बेहतरीन वे ना सुकून हो गया ना जी। ਰਾਣੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। खेलना शुरू करते हैं। मिर्जा दी किताबां पढ़नी है इन्ना वैसे गाल ही है कि रानी राजपूत ऊपर आओ, तुम्हें मिर्जे की किताबों में गालियां दिखाते हैं। अच्छा चोई साहब पहली तो गल है जो मुफ्ती साहब बैठे दे ने ना साडे इत्थे शुरू तो असूल है जो मुफ्ती साहब बैठे दे ने उदों कोई भी नहीं। अच्छा गालां दी गल आई है ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਹਾਈਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੋੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚੀਏ, ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਕੋਲ नेड़े नेड़े हो जा, तबलीग का टाइम हुआ चाहता है। हेलो जी, है ना पूरा अखबार ही मैं वहा दे ये ले जी, अल फजल अखबार और 23 अक्टूबर 1936 का शुमारा है और सफ़ा नंबर है 7। 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर
1936, 23 अक्टूबर 1936, सफ़ा नंबर 7, पहला कॉलम। खलीफातुल मसीह अव्वल को राम मोहन राय की ये किताब पढ़ने से मना किया गया तो यल्लाश ने फरिश्ता इल्हाम से कहा कि नूरुद्दीन को सख्ती के साथ इस किताब के पढ़ने से मना कर दो। फरिश्ता ने इस इशारा को पाकर एक फिक्रा बनाया और बड़ी मोटी गाली देकर कहा कि इस दी भैन नू लाम नू ना करइए ए वेल है खाली डैश डैश नजर नहीं आती भाई। अच्छा ठीक है यार वेल है दोबारा जी पढ़िए। वेते सही हमदा फरिश्ता इल्हाम ने फिक्रा बनाकर एक बड़ी मोटी गाली देकर कहा कि इस दी भैन नू किताब नहीं पढ़नी। ए गाला इत्थों सिखदा सी फरिश्ता आके दसदा हुंदा सी। हाँ भाई रानी रानी नेड़े हो ना जरा है बे ए ते मिर्जा दा फरिश्ता ओनू गालियां नाज़ल करदा हुंदा सी लिया के हेलो वेख लो ऐसी अपने कोल कोई लिखी है हुण कह रहा भी मौलवी झूठ बोलदा है मौलवी झूठ बोलदा एक कम फड़िया तुसां बस ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ तेरी भैन ਤੇ ਉਹ ਲਾਮ ਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਛੜੀ ਤੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਮ ਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਛੜੀ ਆ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਸੀਹ ਮਊ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੈਲੋ ਬਰਕਾਤ ਸਮਾਤ ਕਰੋ ਬਈ। 31 अगस्त 1938 का शुमारा है जी अल फजल और सफ़ा नंबर 6 है। हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ। फिर लिखा है कि हमें तो हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार पर इतराज़ नहीं क्योंकि वो कभी कभी जना किया करते थे। हमें इतराज़ मौजूदा खलीफा पर है क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। कादियानियों का वो सुबहान अल्लाह उच्ची सारी बोलो है कादियानियों। रानी कित्थे गई है रानी आई ना नेड़े हो जरा ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਚੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੰਦੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ये ले जनाब पिगामे सुलह रिसाला है और यार कितने टुट गया पहला सफ़ा है। पिगामे सुलह 7 अप्रैल 1934 और सफ़ा नंबर 15 है कॉलम नंबर 3 है। आपने नज़ुलुल मसीह में से हज़रत मिर्ज़ा साहब का वो रोया पढ़ा जिसमें खजूर ने लिखा है कि मैंने देखा कि मैं एक जंगल में हूँ और मेरे इर्द गिर्द बहुत से दरिंदे बंदर और सूअर वगैरह हैं और इससे इस्तेदलाल ये किया कि ये जमाते अहमदिया के लोग हैं। खंदीरा नाल कर लो गल ये कुत्तियां नाल नहीं जे करनी थे। हाँ भाई रानी रानी
ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? कुछ भी नहीं, नहीं मेरे ख्याल में जूस की मुफ्ती साहब ये जो पहले वाला हवाला पढ़ा था आपने इसी मलफूजात ये जो रसाला से, ये इनकी वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है? जी पड़ा हुआ है। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਡਰਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी, वो ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ सिग्नल ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ है। मौसम भाई वो पड़ा हुआ है वहाँ ਨੈਟਵਰਕ पे। ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? मलिक भाई क्या हाल है? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुफ्ती साहब ठीक ठाक? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। मुफ्ती साहब इस रानी ने मेरे हवाले करो, मैं दी वक्खियां सेका सही BVI तरीके ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਕਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मलक साहब भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ। इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज। जी बहुत ਜੀ शुक्रिया। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਲਕ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਦਵੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛਾ, ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮਲਕ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਸ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ? ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਭਈਆ ਮਰਤਦ ਚੜਿਆ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਘੁਰ ਕੇ ਆਈਏ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਰੋਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਂਝ ਹੱਥ ਤੇ ਖੁਰਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵਹਾਈਏ? ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਏ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਲੱਭ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਢਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना देख के यार मतलब यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई है, चलो बड़ी सोनी बात आपने की है कि हमारे इस काम के फ़ायदे मुरतब हो रहे हैं और पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे और हो रहे हैं। अच्छा, एक ना बड़ा प्यारा हमारा साथी उसने ना मेरी किताब वाला जो ख़त्म नबूवत किताब लिखी है तो छपवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसका ऐलान किया था हमने कि भाई उसको छपवाएं मुखय्यर हजरात जी, तो फ़ायदेमंद चीज़ है जी, लोगों के ईमान बच जाएंगे, लोगों को
कुछ इल्म मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, वो ना देख के उसने कहा जी कि शाह जी किताबें कोई पढ़ता नहीं है, किताबों का क्या फ़ायदा है इतना पैसा लगा के। अच्छा, उसको मैंने फिर एक जवाब दिया। मैंने कहा कि मोहतरम बात ये है कि देखें, आप अपने तई सारी दुनिया को देख रहे हैं। जो जिसकी जितनी चादर या बसात होती है ना, वो उस तरीके से दूसरों को भी समझता है कि शायद सारी दुनिया ही ऐसी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, हकीकत बात है ना। जी जी। अल मोमिनु मिर्रतुल मोमिन का भी मफहूम कुछ ऐसा ही है कि जैसा होता है ना वो उसको फिर दूसरे भी वैसे ही जी। वो समझते हैं, शायद सारे ही ऐसे। एक बंदा खुद किताबों का शायक नहीं है, किताबें नहीं पढ़ता, या मसरूफियत उसकी बड़ी है, या वो खुद जाहिल है, अनपढ़ है, उसको उर्दू नहीं पढ़नी आती, अरबी नहीं पढ़नी आती, वो शायद समझता है सारे ही ऐसे ही हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। अब इसी तरीके से हम जैसे देखें अभी टिकटॉक पे बैठे हैं, तो हम शायद ये समझेंगे सारी दुनिया ही शायद टिकटॉक यूज़ करती है। अब एक बंदा जो ट्विटर यूज़ करने वाला है, वो ये समझ रहा होता है कि शायद सारी दुनिया ट्विटर के ऊपर ही है, साइडों पे तो है ही कोई नहीं। अब व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर मैंने ये देखा है कि जिनको ग्रुप रास आ गए हैं ना, वो समझते सारी दुनिया, कुल दुनिया ही मेरी यही है। तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत सी दुनिया, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूँ, ज़्यादा दूर क्या जाना है। ये टिकटॉक जो है और ट्विटर, ये तो पाकिस्तान में चलता ही नहीं है, यानी लाइव की बात कर रहा हूँ, तो ये तो चलते ही नहीं है। ये तो अगर कोई पाकिस्तान में यूज़ करता है तो वो इलीगल तरीके से यूज़ कर रहा है, वो भी इक्का दुक्का है, मतलब वो यानी ज़्यादा लोगों की एक्सेस नहीं है वहाँ तक। वो बाहर की कोई सिम डालेंगे तो फिर कहीं जाके चलेगा, अब वो सिमें हर एक को तो मुयसर नहीं होती, तो ये वाले मामला थे। अब टिकटॉक पे ये अमूमी तौर पे ओवरसीज पाकिस्तान बैठे हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर भी अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये इस ब्राड के ऊपर 18 बंदे बैठे हैं। अब इन 18 के अंदर भी कोई कर लेते हैं कि कोई 5 कादियानी होंगे या गैर मुस्लिम होंगे, तो कोई 12 बंदे मुसलमान होंगे। तो अब इन 12 बंदों के अंदर फिर तकसीम होगी कि कुछ इनमें पढ़े लिखे होंगे, कुछ इनमें जाहिल होंगे। तो ये तकसीम दर तकसीम होके तो वो मामले कुछ और हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्रिंट मीडिया के अपने फ़वायद हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया के अपने फ़वायद हैं। प्रिंट मीडिया भाई जहाँ पर ये एक्सेस नहीं है वहाँ पर प्रिंटिंग की सूरत में मवाद पहुँचाया जाए, कि जो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते या जहाँ पर ये चीज़ें नहीं, वहाँ पे आप किताबें पहुँचाएँ, रसाइलो जराइद पहुँचाएँ, उनको अवेयरनेस दें। ना करना हो ना, उसके लिए 100 बहाने, क्योंकि करने ही नहीं है जब, तो उसके लिए फिर बहाने तो बंदा 101 निकाल सकता है ना। ये उज़र है, ये उज़र है, ये उज़र है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अभी मामलात चल रहे हैं, मेरे पास बड़े प्रॉब्लम चल रही है, मैं तो फलां गरीब और मस्कीन को भी वो फंड दे रहा हूँ, मेरा भी फंड फलां जगह पे चला गया है, मेरे यहाँ मस्जिद बन रही है, मेरे पीर साहब हैं, मेरा अदारा है, मेरा फलां है, मेरा ये है, मेरा वो कोई बीमार है तो वहाँ बीमारी पे खर्चा आ रहा है, मैं वैसे ही जनाब फारग बैठा हूँ, तो मेरी तो अभी कोई वीज़ा नहीं लग रहा, मेरे वीज़े के प्रॉब्लम, मेरे फलां मसाइल। मतलब वो एक काम नहीं जब करना तो उसके फिर 101 बहाने और 101 वो माशाल्लाह लाइन लग जानी है। लेकिन जिसने करना है काम,
وہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. وہ نہیں دیکھتا، نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ویکھی جائے گی. اور دین کا کام اور ختم نبوت کا خاص کر کے کام ہوتا بھی آنکھیں بند کر کے ہے، اور انے واہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ عشق رسول ہے، اور عشق رسول انے واہ ہوتا ہے. کوئی مسلط نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ہر رکاوٹ کو اس سے پردہ ڈال کے ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اچھا یہاں پہ اب ایک روحانی بات کرنے لگا ہوں، اس کو کوئی اور معنی میں نہ لے، اللہ کرے سمجھ آ جائے. ایک ہوتا ہے جان کا بچانا، ایک ہوتا ہے ایمان کا بچانا. مجھے بتائیے، ایک بندے کی جان تو آپ بچا رہے ہیں لیکن اس کا ایمان نہیں بچا ہوا. ہو سکتا ہے کہ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ایک بندہ بیمار ہے، اس کی بیماری کے اوپر تو آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگ گیا، اس کو آپ تندرست کر دیتے ہیں، لیکن اس کو مزید کوئی 30 سال کی زندگی مل جاتی ہے. لیکن وہ کافر ہو گیا، ملحد ہو گیا، قادیانی ہو گیا، کسی اور طرف نکل گیا، تو ایمان تو اس کا گیا نا. لیکن جو اس کو زندگی ملی تھی اب وہ فضول ہے، وہ زندگی فضول ہے نا. ہاں ایک ہے ایمان کا بچانا، کہ ایک بندہ کافر ہو رہا تھا، ملحد ہو رہا تھا، قادیانی ہو رہا تھا، تو اس کے ایمان بچانے کے لیے آپ کو مان لیتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ خرچہ آیا ہے جی، ایک شخص کے ایمان بچانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ خرچہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں، صرف ایک بندے کا ایمان بچانے کے اوپر آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے. مجھے بتائیے وہ اگر بندے کا ایمان بچ جاتا ہے، 1 کروڑ روپیے میں قیمت کوئی زیادہ نہیں ہے. صرف ایک بندے کا ایمان بچانا ہے، 1 کروڑ روپے میں اس کا ایمان بچا ہے. میں کہتا ہوں ہزاروں بندوں کی زندگی بچانے سے بہتر ہے اس ایک بندے کا ایمان بچانا. اپنا تو کچھ ایسا فلسفہ ہے بھائی. بھائی آپ نے کتابوں کے اوپر خرچہ کیا، مان لیتے ہیں کہ 5 لاکھ 10 لاکھ ایک کتاب کے اوپر خرچہ ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وہ کتاب جاتی ہے ان علاقوں کے اندر، جیسے تھر ایریا ہے جہاں پر قادیانیت بڑی پھیل رہی ہے، تو بھائی وہاں پر آپ اس مٹیریل کو پھیلاتے ہیں، تو پورے وہاں تھر ایریا کی بات کر رہا ہوں کہ ایک گاؤں کے ایک بندے کو قادیانیت کے بارے میں اویئرنس ملتی ہے، صرف ایک بندہ، اس کو پتہ چلتا ہے قادیانی عقیدہ ہے کہ قادیانی کون ہے، کیا ہے. اب ہوگا یہ کہ اس پورے گاؤں کے اندر قادیانی جراثیم گھس نہیں سکتے. جب گھسیں گے، جب وہ ایکٹیو ہوں گے تو وہ ایک بندہ ہی گھیر لے گا ان کو، اور پورے گاؤں کو جگا کے رکھ دے گا کہ ان لوگوں کے عقیدہ تو یہ ہے. یار کمنٹ میوٹ ہی رکھو، ضرورت نہیں ہے کمنٹس کی، ضرورت نہیں ہے کمنٹس، بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ توجہ لوگوں کی کمنٹ پڑھنے کے اوپر لگ جاتی ہے، وہ توجہ سے پڑھتے ہیں، ہماری باتوں کی طرح تو توجہ ہی نہیں نہ پھر ہوتی. تو بھائی ہم کوئی اتنے ویلے تو نہیں ہیں کہ ہم بھی اگر ٹائم دے رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پیغام پہنچے دنیا تک. ابھی ادھر ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے اور یہاں سے ہو کر کے یوٹیوب تک جائے گی اور دیگر جگہوں تک جانا ہے یہ پیغام. تو یہ اس کا کوئی مقصد ہے، اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں نا، یہ طریقہ کار. تو بات یہ ہے کہ بھیا وہ ایک شخص کا آپ نے
ایک شخص کو آپ نے تیار کیا، مجاہد ختم نبوت بنایا، اس ایک نے پورے گاؤں کو بچا دیا۔ ہاں یہ ہے ہماری حکمت عملی، یہ ہے۔ تو جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھائی، میں ان کو آپ جواب دے رہا ہوں نا کہ اس کے کیا فوائد ہیں، کیا وہ بڑے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں میاں۔ میری اتنی کتابیں چھپی ہیں اور ہم نے پاکستان کے طول و عرض میں پہنچائی ہیں، اور اس کے بڑے فوائد مرتب ہوئے۔ تو فائدے تو ہیں نا۔ اب اس میں ہم نے کیا ہے ختم نبوت کتاب کے اندر، کورس کے اندر، کہ ہم نے اپنا عقیدہ ختم نبوت بیان کی ہے۔ ہاں جی، اپنا عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے کے ساتھ ہی، اب یہ میں فہرست ایک دفعہ سامنے رکھ لوں۔ اچھا، تو یہ جو پہلی جلد ہے اس کی، اس کے اندر ٹوٹل 5 سبق ہیں، اور پہلا سبق ہے جناب مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اور یہ قرآن پاک کی کون سی آیت سے ثابت ہے، اس آیت کا شان نزول ہم نے بیان کیا ہے۔ پھر خاتم کا جو مادہ ہے قرآن پاک میں تمام جگہوں سے ہم نے ایک جگہ اکٹھا کی ہے۔ پھر اس کو تفاسیر سے ثابت کیا ہے کہ مفسرین نے یہ خاتم کے جتنے مادے ہیں ان کو کن معنوں کے اندر استعمال کیے۔ تفسیر یحییٰ بن سلام لے کے آیا ہوں، تفسیر معانی القرآن و اعرابہ لے کے آیا ہوں، پھر خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی یہ ثابت کیا ہم نے لغات عرب سے۔ اور سب سے پہلے تاج العروس، لسان العرب، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کے بارے خود مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اگر معتبر ترین کتب ہیں تو یہ 2 کتابیں ہیں لغت کی۔ تو لسان العرب اور تاج العروس والے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی۔ المحکم والمحیط العظم ہے، الصحاح تاج اللغہ ہے، المفردات فی غریب القرآن ہے، الکلیات ہے۔ پھر ہم تفاسیر کی طرف بڑھے ہیں، تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر نصفی ہے، تفسیر در منصور ہے، تفسیر البحر المحیط ہے، تفسیر ابی سعود ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر روح المعانی ہے، اور پھر دیگر تفاسیر سے لے کے آئے ہیں۔ پھر جناب اچھا یہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں نا، بڑی لمبی چوڑی یہاں گفتگو ہے، فہرست بڑی لمبی چوڑی ہے۔ اچھا جی، پھر احادیث کی طرف ہم بڑھے ہیں، تو ہم نے صرف بخاری اور مسلم کی ختم نبوت کے اوپر بیان کردہ احادیث کو اکٹھا کی ہے، زیادہ دور نہیں گئے ہم۔ اور چونکہ بخاری اور مسلم کے ترجمے خود قادیانیوں نے بھی کیے ہیں، ترجمے بھی ہم نے قادیانی کتابوں کے ہی دیے ہیں۔ اچھا جی، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں۔ اس کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے وہ آخری اینٹ اصل میں ہوں۔ اس کے تقریباً کوئی درجن بھر حوالہ جات ہم نے لے کے آئے، اور کوئی درجن حوالہ جات تو میں وہ لے کے ہوں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے خاتم النبیین تو اصل میں ہوں۔ پھر بزرگان دین اور عقیدہ ختم نبوت کا پورا باب بندہ ہے ہم نے، اور شیخ ابن العربی کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ وہ اجرائے نبوت کے قائل تھے۔
وہ پھر تقریباً کوئی درجن بھر شیخ ابن العربی کے حوالہ جات ہم لے کے آئے ہیں، فتوحات مکیہ اور فصوص سے اور دیگر شیخ کی کتب سے، کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت اصل میں تھا کیا۔ اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی ایک کتاب کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ وہ بھی اجراء نبوت کے قائل تھے۔ اچھا، یہ والے جو دلائل ہیں نا، یہ ہیں قادیانیوں کی کتاب پاکٹ بک اور قندیل صداقت، وہاں کے کیے ہوئے اعتراضات کا میں نے جواب دیے۔ اچھا جی، تو ملا علی قاری کا او ہو میں کہتا ہوں کتاب پڑھیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ملا علی قاری کی جو عبارت پیش کرتے ہیں اسی عبارت سے ہی یہ لوگ جھوٹے ہم نے ثابت کیا ہے ان کو، اسی عبارت سے، اور کوئی درجن بھر حوالہ جات مزید آگے دیے ہیں۔ اچھا جی، پھر ایک پورا باب بند ہے جناب مرزا غلام قادیانی نے جو خاتم کا ترجمہ آخری کی ہے، اس میں کوئی درجن بھر حوالہ جات لے کے آئے ہیں، خود قادیانی کتابوں سے خاتم کا ترجمہ ہم نے آخری ثابت کی ہے، اور کتابیں بھی وہ کہ جو مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ کتابیں تو میرے اوپر الہام ہوئی ہیں، جیسے براہین احمدیہ کتاب کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہا یہ تو مجھے میرے خدا نے لکھوائی ہے، یہ کتاب الہام ہوئی ہے، اسی کتاب سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خاتم کا مطلب ہے آخری نبی، خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی، اور دیگر بہت سے حوالہ جات ہیں جی۔ تو کتاب کے آخر میں جو تتمہ ہے اس میں اللہ حضرت فاضل بریلوی کی ختم نبوت کے اوپر المبین ختم النبیین جو رسالہ ہے اس کا ہم نے تتمہ کے طور پہ اس کی تخریج و تصحیل لے کے آئے ہیں۔ تو یہ تو پہلی جلد کی کارگزاری ہے۔ دوسری جلد کے اندر قادیانیوں کا عقیدہ اجراء نبوت اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے اللہ کے حکم سے، اجراء نبوت کے نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ تیسری جلد کے اندر جا کے مسلمانوں کا عقیدہ حیات مسیح، میں کہتا ہوں مزہ آ جائے گا آپ کو۔ چوتھی جلد کے اندر جا کر کے ایک قادیانیوں کا عقیدہ وفات مسیح کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے اللہ کے حکم سے۔ پانچویں جلد میں حضرت امام مہدی کے اوپر گفتگو ہوئی ہے بڑی مفصل، اور چھٹی جلد کے اندر مرزا قادیانی کی کرتوتوں کو ہم نے جمع کی ہے۔ تو بہرحال اس کی ٹوٹل 6 جلدیں بن رہی ہیں، تو ابھی پہلی جلد کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد چھپ کے آئے۔ کیوں ملکہ؟ جی مفتی صاحب، ابھی تو پہلی جلد کی بات چل رہی ہے کہ وہ پہلے چھپ کے آئے، پھر دوسری کی کمپین ہم چلائیں گے۔ انشاءاللہ جب دوسری چھپے گی پھر تیسری کی کمپین چلے گی، اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم آگے اپنے ہدف کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بس یہی ہے کہ 2 احباب 4 مل کے نا تو اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور اشاعت کے جو مراحل ہیں وہ بآحسن جو ہے نا وہ سر انجام پانے چاہیے۔ ہاں ملک جی بالکل انشاءاللہ مفتی صاحب۔ جی شکیل بھائی، آپ نے بیان کیا تو آپ تھوڑی سی یہ مفتی صاحب یہ کتنی چھپ کے آ رہی ہیں؟ نہیں پہلے سوری مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ عقیب بھائی ایک منٹ ذرا شکیل بھائی نے گل کرن دیں۔ جی جی شکیل بھائی، مفتی صاحب آپ صرف یہ بتائیں کہ ان کے اوپر کتنے اخراجات آ رہے ہیں، کس طرح سے اس کا طریقہ کار ہے، اور شکیل بھائی کوئی خرچہ کوئی بھی نہیں ہے،
खर्चा असल में मन के अंदर है, खर्चा हमारे अंदर है, खर्चा नहीं है कोई। खर्चा, असल खर्चा जो है ना वो है शकील भाई हमारे अंदर है। जब अंदर से उठती है ना तो फिर कोई खर्चा खर्चा नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब अंदर से उठ जाता है, अंदर जाग जाता है ना, वो तो पहाड़ों को अबूर कर देता। वो कहता है शह ही कोई नहीं मेरे गया कि शह है। हाँ जी, खर्चा कुछ भी नहीं है। तकरीबन 5-5.25 लाख रुपया खर्चा आ रहा है ये खर्चा एक जिल्द के ऊपर आ रहा है जी, एक जिल्द पर। हाँ जी हाँ, असल में हो ये रहा है शकील भाई कि आपको अब ये सारी स्टोरी बतानी पड़ेगी। मुख्तसर ये समझ लें कि हर जिल्द के सफ़ात अलग अलग है। किसी में सफ़े हैं 300 है, किसी में 600 है, किसी में 500 है, किसी में 700 है। तो इस तरीके से वो फिर छपवाई की रकम भी आगे पीछे होती है। आप समझ रहे हैं? बेशक हाँ ये है। अच्छा, और मैं शकील भाई, मैं जो किताबें छपवाता हूँ ना, वो आम रूटीन की किताबों से बहुत अच्छी होती हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। आम जो किताबें छपती हैं ना, उस पर वो ये ग्राम होते हैं, पेज जो होता है ना, पेपर, वो ग्रामों के अंदर होता है। 55 ग्राम यानी उसको कहते हैं आम जो लगता है किताबों के अंदर, 55 ग्राम पेपर। लेकिन मेरी जितनी भी किताबें शुरू दिन से मैंने एक क्वालिटी रखी है अपनी किताबों की कि किताब ऐसी होनी चाहिए कि अगर लाइब्रेरी के अंदर वो 50 साल भी पड़ी रहे ना, तो उसका सफ़ा जो है ना, उसको वो जंग नहीं लगना चाहिए उसको। क्योंकि किताब कोई 5-7 साल पड़ी रहे ना, तो उसका सफ़ा स्याह हो जाता है। वो पेपर चूँकि नाकिस होता है तो वो ज़ाया हो जाती है वो चीज़। तो इसलिए मैंने पेपर जो है ना, वो एक तो बाहर का पेपर मैं लगवाता हूँ, और वो होता है पता नहीं कोई 70-80 ग्राम, यानी बड़ा हैवी पेपर होता है। तो वो मेरे जिस जगह से मैं करवाता हूँ ना, वो उन्होंने को बताते हैं मुझे कि ये है, उसका नाम है वो पेपर का, वो वाला मैं लगवाता हूँ। आप खुद अंदाज़ा करें कि वो वाला पेपर होता है, ये जो प्रिंटिंग के अंदर नहीं निकलता, आम प्रिंटर जो घरों में रखे होते हैं, जी हाँ वो वाला पेपर होता है, अच्छे वाला। तो वो यानी आम रूटीन की किताबों से काफ़ी कॉस्टली पड़ती है किताब, लेकिन किताब एक मियारी बन जाती है, एक चीज़ बड़ी मजबूत बनती है। हाँ जी। तो अगर मुफ्ती साहब, अगर ये जो जितने भी आपने 6 जो अबवाब बताए हैं, जी और ऐसा नहीं हो सकता कि इस किताब को, क्योंकि फिर काफ़ी बेहतर होता कि ये सारे जितने भी जो सब्जेक्ट आपने बनाए हैं उनको एक ही जिल्द में शामिल कर दिया जाता। ये शकील भाई यही था, सबसे पहले यही था, मेरा ज़हन था कोई 800-850 सफ़ा बनेगा, लेकिन वो किताब इतनी फैल गई, फिर बना के यानी 3 जिल्दें बनानी चाहिए। 3 जिल्दें इस तरीके से कि अकीदा, ख़त्म नबूवत और इजराए नबूवत एक जगह कर दिया जाए, और अकीदा हयात मसीह और वफ़ात मसीह एक जगह, और इमाम महदी और मिर्ज़ा कादियानी का किरदार। तो ये 3 जिल्दें अच्छा, उसमें भी अब ये हुआ कि जब मटेरियल जमा हुआ तो वो यानी रेंज से बाहर हो गया ना, समझ रहे हैं कि नहीं? जी तो वो ज़्यादा मोटी जब किताब बन जाती है ना, एक तो वो खोलने के अंदर बड़ी दिक्कत होती है, और वो थोड़े से मसाइल आते हैं। तो इसमें फिर मुशावरत ये की गई कि जिल्द ऐसी होनी चाहिए कि जो लिमिटेड हो, और उसमें अल्फाज सही पढ़े जाएं, और किताब सही तरीके से खुल सके। यानी आगे टेबल रखा हो तो किताब ऐसे खोल के आराम से
ये बंदा पढ़ सके। तो इस तरीके से कोई उसको मैनेज किया गया है। जी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। एक और चीज़ मैं ये भी इसमें जो आपने बताया, एक आपने ये चीज़ ऐड करनी है कि ये जो मिर्ज़ा कादियानी का जो तसानीफ है ना, जो आपने भी काफ़ी दफ़ा शो किए हैं, जैसे उसने जो है ना वो लिखा हुआ है, जो उसने तसानीफ लिखी हुई हैं और उसने तबाही मचाई हुई है, जी तो उसका तस्करा और हवाला जो है ना ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा ये दावा है कि इस किताब के अंदर कादियानियों के हर एतराज़ का जवाब और कादियानियत के मुतल्लक उठने वाले हर सवाल का जवाब इसके अंदर हमने जमा किया है। ये है हमारा चैलेंज। ये वाली ये आखिरी जिल्द के अंदर ये चीज़ है जो आप कह रहे हैं, वो हमने कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 नहीं बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं इंशाल्लाह आपके जो है ना वो शाना बिशाना आपके इस काम में मैं इंशाल्लाह आपका हाथ बटाऊंगा। अच्छा इंशाल्लाह। शकील अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा पहले ये तो है बात कि ये है एक कि मलक भाई, एक मिनट मलक, एक मिनट शकील भाई, यहाँ पे अभी कोई ऐलान ना करिएगा। जी उसकी जी वजह है, उसकी एक वजह है कि जब कि हम कैंपेन चला रहे हैं तो 2-3 दोस्त ऑनलाइन हमें उन्होंने बड़ी मोहब्बत प्यार का इजहार फरमाया है। तो यहाँ तक भी उन्होंने कहा जी हम तो पूरा खर्चा उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं एक अरसे की देख रहा हूँ, यानी मुझे तो एक लंबा पीरियड हो गया ना इस सोशल मीडिया पे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस लंबे पीरियड में हमने ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ बड़े बड़े काम किए हैं, कोई छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े काम। तो जब जब हमने ऐलान किया तो इस किस्म के बड़े हमारे साथ जुड़े। अब वो पता नहीं, अल्लाह ही जानता है कि या तो वो हमारा वो हमारे साथ खेलते हैं हमारे दोस्त, या मतलब वो क्या अगले की गर्ज है, या वो क्या है कौन है हम जानते नहीं होते। ये वाले मामला तो हम एक अरसे के भुगत रहे हैं कि दुनिया के सामने तो ऐलान हो जाता है और लोग दूसरे जो कोई करना भी चाह रहा होता है वो भी चुप हो जाता है कि नहीं वो कर दिया ना शकील भाई ने, चल ठीक है साड़ी हुन जरूरत कोई नहीं। अब ना ही तो शकील भाई ने राबता करना है तो ना ही दूसरों ने करना, हम वो के दरमियान में रह जाते हैं। ये वाले मसाइल है मेरे साथ। वो ना वो बादशाह ने कहा ना मैंने नहर बनाई है तो तमाम ग्वालों ने ना यहाँ सुबह सूरज निकलने से पहले पहले एक दूध की बाल्टी डालनी है। तो पहला बंदा आया, उसने कहा यार इतने 1000 बंदा है तो 1000 बाल्टियां डालनी है, एक पानी की अगर मैं डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ना। उसने ना पानी की डाल दी। दूसरा आया, उसने भी यही सोचा कि दूसरों ने दूध डालना है, मेरा अगर पानी की बाल्टी होगी तो कौन सा फ़र्क पड़ना है, उसने भी डाल दी। अब सुबह जब सूरज निकला ना तो वो माशाल्लाह दूध की जगह पानी बह रहा था, क्योंकि हर एक ने यही सोचा था कि दूसरों ने डाल दिया होगा दूध, तो पानी में पानी माशाल्लाह। तो मुबशर शाह की ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि राबते की कमी नहीं है, राबते तो हज़ारों की तादाद में, लेकिन शायद हर बंदा ये सोचता है कि वो माशाल्लाह मुफ्ती साहब की तो बड़ी पहुंच है, बहुत बड़ी। अब हम ना वो दरमियान में ना वो फिर देखते ही रहते हैं कि क्या करें भाई। ये वाले मामले हैं हमारे साथ। अच्छा मैं यहाँ पे गवाह करना चाह रहा था, शकील अहमद साहब आए हैं, ये फर्स्ट टाइम ही मेरे पास इधर आए हैं। तो शकील साहब मैं आपको पहली तो बात ये है कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम अपनी कॉल पे लिया है, तो अगर आपकी कोई भी बात होगी तो आप मुफ्ती साहब का नंबर लेके उन्हें डायरेक्ट कॉल के ऊपर, क्योंकि एक तो आपकी आईडी जो उनसी है वो दूसरी है, और सोशल मीडिया पे इस तरह के बड़े मामलात, माजरत गुस्सा न करिए, दूसरे जो लोग हैं आपकी नीयत अच्छी होगी, पर जो दूसरे लोग हैं वो यही कहते हैं कि शायद जो उनसे ना ये यहाँ पे बैठ के कोई फ़ंड वगैरह या ये वो इस तरह के मामलात,
और किसी के ऊपर कोई इतना दबाव नहीं है, जो जितनी जिसकी हैसियत है वो उतना दे, ठीक है जी। और किसी से ज़बरदस्ती भी नहीं दिया जा रहा, ठीक है जी। ये आपने अपने लिए और आखिरत के लिए करना है। नहीं, यहाँ वो तो जनरली एक बात है ना, हमारी चूंकि कंपेन का एक हिस्सा है कि हम चूंकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो हमने सोशल मीडिया पर ही बात रखते हैं। ये शुरू दिन से हमारा तरीका है, ये कोई आज कोई अनोखा या पहली दफ़ा या पहली या आखिरी दफ़ा तो नहीं है, शुरू दिन से ही, क्योंकि हम शुरू दिन से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो हमारे जो भी मामले होते हैं सब सोशल मीडिया दोस्तों के साथ ही शेयर होते हैं। तो हम अपनी बात रख देते होते हैं। पहले तो यूट्यूब पे होते थे, तो यूट्यूब की जब स्ट्रीम करते थे और करते हैं, तो उसके अंदर हम बीच में कोई टच दे देते हैं, जी ये काम हम करने लगे हैं, ये मदरसा बनाने लगे हैं, या ये वेबसाइट बनने लगी है, या ये मतलब फ़लाँ चीज़, ये फ़लाँ चीज़, तो फ़लाँ चीज़। तो वो फिर एक दो पैगाम हम दे देते हैं, तो वो दोस्तों को पता चल जाता है जी अच्छा ये काम होने लगा है। यही है बस। हाँ जी, कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कोई नहीं है। ये दूसरे एक दोस्त बोल रहे थे, कोई पता नहीं कौन थे आकिब भाई थे वो। आकिब भाई मेरे ख्याल से अगर हैं तो आ जाएं। यार। वो मोहम्मद अली किधर गया है? मोहम्मद अली नजर नहीं आ रहा। आपको ज़रा मैं ड्रॉप करके आकिब भाई को ले लूँ, ठीक है जी ठीक। हाँ हाँ जी। अच्छा, मोहम्मद अली जो हैं वो मसरूफ़ हैं, उनसे मेरा रब्ता हुआ था, वो यहाँ पे नहीं है, वो किसी और जगह पे है। अच्छा अच्छा। यानी कि आउट ऑफ कंट्री है। तो इस वजह नहीं से खैर तो है ना, तबीयत तो जी, जी, ठीक है जी, ना? जी, बिल्कुल फिर वो बकाया खैर। सुप्रीम कोर्ट के साथ निकले हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से अच्छा, वो कमेंट ऑन कर दी, मेरे मैसेज आ रहे हैं बार बार। अच्छा कर दे, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਹੀ ਕੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਲਮੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ क्योंकि इस सवाल का जवाब तो मैं दिता वे, अगर मेरे नाल तो माशाअल्लाह तुहाडा इल्म ज़्यादा, तुसीं ज़रा बेहतर तरीके नाल जवाब दियो। जवाब है अच्छा यार, उर्दू में बात करो ना। अच्छा, मैं ना फंस जाता और नहीं ना समझ आती लोगों को, जब वो जाती है ना ये ब्राड यूट्यूब पे, तो बड़े कमेंट आते हैं जी हमें नहीं समझ आ रही पंजाबी। असल में बात ये है कि ये 2-4 दिन जो मैंने उर्दू बोली थी ना, उस उर्दू की वजह से मुझे फिर बाद में जो उनसे ना मामू ने बुला लिया था। मैं 3 घंटे वहाँ पे रह के आया हूँ, क्योंकि पंजाबी वो ज़बान है कि जिसमें आप बात कर सकते हैं, आप समझ गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आपकी यूट्यूब का मसला है तो मेरा मामे का मसला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हिकमत अमली है वे वैसे यार, है ओए मतलब जैसे 3 घंटे रह के आया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो इस वजह तो जो है ना मैं, क्योंकि मौसम भी माशाल्लाह उर्दू बोलता है, उर्दू ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਹੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, और इस वजह तो जो ना बड़े मामला क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, वैसे मैं कह देता हूँ उर्दू में ही, बाकी फिर बाद में पंजाबी में आ जाऊँगा। अच्छा, ये जो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम है, एक शख्स पूछ रहा था कि वो वफ़ात पा गए हैं, और अगर वो वफ़ात पा गए हैं, ठीक है, यानी कुर्बे क़यामत, उसके कहने का मकसद ये था कि कुर्बे क़यामत तो आपने नहीं आना, आप वफ़ात पा के हैं, सिर्फ इमाम महदी ने आना है। तो इसके बारे में मैंने उनको जवाब भी दिया है, पर आप इसके बारे में भी कुरान पाक की और अहादीस की जो है उस रूह से आप अगर चाहें तो वो दिखा भी दें, बेहतर हो जाएगा कि अगर कोई इस तरफ आ जाए।
اچھا یہ ہے ایک تو میں نے نا کمپیوٹر کے آگے نہیں ہوں، بستر پر ہی لیٹا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب دوسری بات یہ ہے کہ دلائل تو پھر وہ کتاب ختم نبوت کورس کے اندر ہی پڑھیں گے اور بڑے تفصیلی اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ. جی. ایسی کوئی بات مختصر میں عرض کرتا ہوں جی کہ یار یہ وفات مسیح کا عقیدہ جو ہے نا یہ جاری کس نے کیا؟ سوال یہ ہے. یہ نکلا ہے سر سید احمد خان سے. ٹھیک ہے. یعنی اس عقیدے کا سب سے پہلا جو فرد ہے نا وہ ہے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان سے پہلے یہ عقیدہ دنیا میں تھا ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے. ٹھیک. اگر ہے تو لے یہ گو اور یہ میدان لے آؤ بھائی. کتابیں ساری دنیا کے اندر موجود ہیں، نیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں. کوئی قرآن کی تفسیر ہے، کسی حدیث کی شرح ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن ہے. کسی باب بزرگ نے پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں صدی تک بتا دو. کسی کا کوئی ہے تو لے. اچھا یہ بھی ذرا اب ہوا یہ ہے، میں عرض کروں. اچھا ہوا یہ کہ دلیل تو تھی کوئی نہیں. اب مرزا قادیانی نے یعنی وہ دھوکے اور دجل اور فریب کر کے کچھ بزرگان دین، جیسے ابھی شیخ ابن العربی کی میں نے بات کی ہے، ملا علی قاری کی بات کی ہے، ٹھیک. تو ان کی کچھ عبارتوں کو لے کر کے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی لوگوں کو، اور کہا کہ وہ دیکھو وہ تو وفات مسیح کے قائل تھے. حالانکہ وہ بات ہے ہی نہیں، وہ بات کوئی اور کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو. اب ہوا یہ کہ وہ کتابیں تو لکھی عربی کے اندر اور کچھ کتابیں آپ کو فارسی میں ملیں گی. اب عوام کو عربی اور فارسی عمومی طور پہ آتی نہیں ہے. بالکل. اب وہ مطلب ترجمہ تو وہی جو اس نے کر کے دینا ہے، لوگوں نے تو وہی دیکھنا ہے نا کہ ترجمہ اس نے کیا کی ہے. ٹھیک. اور بعض نان سینس اس ترجمے کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں کہ واقعی یہ ٹھیک ہے. یہ ڈرامے میں نے اپنی اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کے کیے ہوئے ترجموں کی بھی گرفت کی ہے کہ یہ ترجمہ بند کر، تو نے کیسے کر دیا ہے؟ یہ تو بنتا ہی نہیں ہے ترجمہ. کتنے جھوٹے اور فراڈیے ہو تم. اگلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں، مرزا قادیانی کس نکڑ سے سچا ثابت ہوگا؟ سوال یہ ہے. مرزا کو کس کنارے پہ لگانا ہے؟ جی ملک بات کریں. جی میں نے انہیں وہ قرآن پاک کی آیت پہ دی تھی وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. آیتیں تو بڑی ہیں، آیتیں تو بڑی ہیں. بالکل وہ میں نے بھی آیتیں تو بڑی ہیں. وہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے کہ ان یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا ہے. بالکل. اور بلکہ ان کو اٹھا کر اپنی طرف لے گئے. ایسا ہی ہے نا مفہوم، یہی ہے نا. جی بر رفع اللہ. ایک دو اور دو چار کر کے میں سمجھاتا ہوں، بالکل جھٹکے اور سیدھے سادے طریقے سے، کوئی عالمانہ گفتگو نہیں. ٹھیک. وہ دیکھو ماں قاتلوہ ضمیر سے مراد جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی ہے نا. بے شک. ہیلو جی جی آپ کا نیٹ ورک کا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا میرے نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا جی میں کہتا ہوں ہو ضمیر سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہی ہے نا. بالکل بے شک. اچھا ہو ضمیر سے مراد عیسیٰ ابن مریم کا جسم ہے کہ روح ہے مراد؟ جسم. روح نہیں ہے مراد. روح بھی ہے، جسم میں روح ہوتی ہے. مطلب آپ کو یہ کہیں نا کہ جسم اور روح کا مرکب مراد ہے. جی مرکب مراد. ماں قاتلوہ اور ماں صلبوہ دونوں جگہ ہو ضمیر سے مراد جسم اور روح کا مرکب ہی ہے نا. بالکل. تیسرے مقام پہ جا کے ضمیر یہی ضمیر آتی ہے کہ بل رفع ہو، ہاں اللہ وہ رفع ہو، بلکہ اللہ اس کو اٹھا کے لے گیا الیہ اپنی طرف. ایسا ہی ہے. بالکل. اب یہاں پہ روح ہے کہ جسم؟ دونوں.
दोनों ही मुराद है ना। जी जी, रूह और ये जिस्म है भी- वो झटका सा एक तरीका, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कि पिछली 2 जगह के ऊपर रूह और जिस्म मुराद है। कादियानी ये ड्रामा करते हैं, कहते हैं पिछली 2 जगह तो जिस्म और रूह ही मुराद है, लेकिन ये तीसरी जगह पे जाके सिर्फ रूह मुराद है कि अल्लाह उनकी रूह को उठा के ले गया। माजरत, अगर रूह को भी अगर अल्लाह की जात उठा के ले गई, नहीं ना, कैसे नहीं, साबित नहीं होता? एक मिसाल देनी है। अगर मगर वाला सवाल ही को नहीं मलक। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पे कोई आलिम नहीं बैठे, यहाँ पे बड़े सीधे साधे लोग बैठे, इनको सीधे साधे तरीके से समझाना है। ठीक है, इनको इल्मी बातें समझ आनी ही नहीं है इनको। ठीक है। भाई इधर देखें, पिछली 2 जगह जब रूह और जिस्म मुराद है तो यकीनी सी बात है तीसरी जगह पे जाकर भी जिस्म और रूह ही मुराद है। बिल्कुल इसी ये तरह। कैसे हो गया कि तुम जिस्म को छोड़ रहे हो दुनिया के अंदर और रूह को पकड़ रहे हो कि रूह को अल्लाह ने ऊपर ले गया? ऐसे तो नहीं हो सकता। जी आके भाई कुछ कह रहे हैं। जी मुफ्ती साहब, यहाँ पे वो तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ने उनके दराजात बुलंद कर दिए। कितना नॉनसेंस तर्जुमा है कि पहले जो है वो हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो किताब के अंदर खत्म नबूवत कोर्स के अंदर इसकी बड़ी तर्जुमों के ऊपर गिरफ्त की गई है। इनकी एक एक हरकतों सकनत के ऊपर गिरफ्त की है आजज ने अल्लाह के हुक्म से कि ये किया तो क्यों किया, ये किया तो क्यों किया, कहाँ से किया। हाँ जी, तो वही है ना कि वो थर्ड पॉइंट बताने लगे थे कि पहली 2 जगह पे तो इस तरह रूह और जिस्म का मरकब है, और तीसरी जगह पे आप आगे फरमा रहे थे बात थोड़ी चेंज हो गई। नहीं बता तो दिया मैंने कि बता तीसरी दिया। जगह भी जिस्म और रूह का मुरक्कब ही मुराद है कि अल्लाह उनको जिस्मानी तौर पे यानी उनके जिस्म को उठा के ऊपर ले गया और जिस्म के अंदर रूह थी। बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये माजरत, ये सर सैयद अहमद खान जो है ये भी कादियानी है, ये भी बता दें। नहीं कादियानी नहीं है, जी ये है नेचरी। नेचर कहते हैं फितरत को। ठीक। हुआ ये था कि एक किताब मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है, द लाइफ ऑफ मोहम्मद। ठीक है। वो लिखी थी एक, समझ लो कि डेरिया टाइप एक आदमी था, उसने लिखी थी। ठीक। जैसे तो वो क्रिश्चियन लोग उसको कहते हैं कि वो क्रिश्चियन था, नहीं वो, लेकिन वो डेरिया था। उसने ना उस किताब के अंदर इन चीजों के ऊपर अटैक किया था, यानी जो भी गैब से ताल्लुक रखती हैं, जो रूहानी चीजें हैं, जैसे मलाइका है, फरिश्ते हैं ना, जन्नत दोज़ख है, जो नजर नहीं आती, करामत है, मोजदा है, समझ रही है कि नहीं? जी। या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पर उठाया जाना जी। और जिंदा आसमान से नजूल करना, अब ये भी गैब है। ठीक। गैब है ना, गैब से ताल्लुक रखती है ना ये चीजें, रूहानी चीजें। तो इन सब चीजों के ऊपर उसने किया था अटैक। अब ये सर सैयद गया यूरोप और कहा कि मैं ना जाके आमने सामने उसको जवाब देता हूँ। पहले इसका कीदा था तो पक्का वाबी, यानी कट्टर वाबी था, गैर मुकल्लिद था। सर सैयद अहमद खान वाबी था, गैर मुकल्लिद था। ठीक। लेकिन वहां पे जाके जब टाकरा हुआ तो उस बंदे ने इसको अपना कायल कर लिया और ये कायल हो गया। तो इसने क्या किया, इसने फिर कुरान की तफसीर लिखी, वो भी मेरे पास यहाँ रखी है। ठीक। और उसके अंदर हर चीज का उसने इनकार ही कर दिया सिरे से। उसने कहा है ही कोई नहीं, जन्नत दोज़ख कोई नहीं है, बस मरने के बाद एक खुशी सी मिलनी है, उसको जन्नत कहते हैं। मरने के बाद एक गमी सी मिलेगी गुनहगार को, उसको जन्नम कहते हैं। फिजिकली इन चीज़ों का कोई किरदार नहीं। योमे हिसाब जो वो है ना, जी। योमे हिसाब, उसका उसने कहा तर्जुमा वो करता है, यानी हर इंसान की फितरत का एक हिसाब होता है दुनिया के अंदर ही, वो है योम हिसाब उसका। यानी कि महशर नहीं होगा उसके हिसाब ना से। नहीं नहीं कोई नहीं,
ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਫਾਰਗ, ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੈ। ठीक। अच्छा 2 सवाल है कि माजरत के नाल एक और सवाल। अच्छा यार बात कंप्लीट, इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद एक नतीजा मैंने निकालना था, वो ये है कि फिर मिर्ज़ा कादियानी ने किया था सर सैयद अहमद खान को फॉलो, ठीक। और बीच में नबूवत का तड़का लगाया था, अकायद सारे उसने सर सैयद से लिए थे। ठीक हो गया, ये हुआ है गेम ये हुई है जी। ठीक हो गया। अच्छा ये गामदी कौन है? मुझे तो पता है पर गामदी भी असल में जो है ना सर सैयद ग्रुप का ही है, और इसी के ग्रुप का एक बंदा है गुलाम अहमद परवेज, ठीक, परवेजी। यानी ये असल में अपने आप को कहते तो यही है कि हम कुरानिस्ट हैं और हदीसों को हम नहीं मानते, लेकिन ये कुरानिस्ट भी नहीं है, कुरान को भी नहीं मानते, मुल्हिद टाइप है ये, यानी मुल्हिद टाइप, बिल्कुल एक दैरिया टाइप ना, यानी मन मानी कुरान की तफसीलें और तशरीहात और जो मन में आया वो, ये वो लोग हैं, ये वो तबका है। ठीक, बेहतर। मोहम्मद शेख करके है कोई वो? हाँ वो भी कुरानिस्ट है, वो बनी इसराइल वाला कुरानिस्ट है। वो उसके इतने गलीज अकायद हैं, ये जो टिकटॉक के ऊपर भी बनी इसराइल वाले नहीं है जी जी, जो कुरानिस्ट, ये वो है ना उसके शागिर्द है ना, इसराइल की वो झंडे लगा हाँ वो ये कहते हैं कि ये कुरान ऐसे मोहम्मद के ऊपर नाज़िल हुआ है जो बनी इसराइल का एक फर्द था, और इनकी नमाज भी अजीबो गरीब है, इनका हज तो मानते नहीं है, रोज़े ज़कात ये इन सब चीज़ों के मुनकिर हैं ये लोग, और बड़े अजीबो गरीब इनके अकायद और नज़रियात, और बिल्कुल यानी इस्लाम का तो रत्ती भी नज़र नहीं आती। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक। मोहम्मद शेख ना रमज़ान के दिनों में तरावियाँ करवाता है, तो कैमरा ऑन करके ना तो आगे ये 3 इमाम खड़े करते हैं, पता नहीं अजीब सी नमाज इन्होंने जारी की हुई है, 3 इमाम। जिस तरह कादियानियों की वो फ़िक़्ह अहमदिया में लिखा है कि ये लंगोटी में भी नमाज पढ़ सकती हैं। हाँ वो तो चलो एक आधी चीज ना, इन्होंने तो पूरा अपना एक मजहब ही एक अलग बना लिया हुआ है ना, बिल्कुल, यानी दीन ने इस्लाम से कोई तल्लक ही नहीं। असल में यही है ना कि जो बंदे जिन लोगों को पता नहीं, जो सीधे साधे हैं, मेरी जी जब बात हुई थी तो मैंने भी यही कहा था कि ये हिसाब ना हो कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो मैंने खुल के वो बात बताई भी थी उन्हें और कंफर्म भी करवा दिया अभी। और बात करने का मकसद यहाँ पर कुछ टिकटॉक के ऊपर नाम है, नाम नहीं मैं लेता, शायद कोई समझ जाए तो समझ जाए। अब वो जनाब पहले एक्स का कादियानी है, यानी अपने आप को कहते तो हैं जी हम एक्स का कादियानी है, लेकिन अब वो मौजूदा उनकी कंडीशन ये है कि वो उसके चुंगल में फंसे हुए हैं मोहम्मद शेख के, यानी वो बिल्कुल यानी आसमान से गिरे खजूर में अटके, बिल्कुल वही है, वो वाला हिसाब तब हो गया है, और अजीबो गरीब सूरत हाल बनी है, अल्लाह ही माफ़ करे बस। तो इसलिए मैंने कहा ये अमूमी तौर पे जो कादियानियत को छोड़ते हैं ना, तो वो आगे बड़े उनके डावाडोल अकीदा होता है। ये मेरे बड़े तजर्बे की बात है, मैंने अभी तक बहुत कम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि चंद मतलब बड़े बड़ों की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े नाम है एक्स कादियानी, उनकी बात कर, छोटों की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े नाम जो के जिनके नाम के साथ लगता है जी एक्स कादियानी, उनका अकीदा भाई ठीक नहीं, बड़े मैंने देखे उनके अपने अकीदे बड़े डावाडोल हैं। एक शेख हो गया जिस तरीके से, हाँ जी बड़े हैं जनाब, बड़े 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 नाम हैं। अब यही है ना कि जिस तरह कादियानी जो उनसे हैं वो उर्दू में उर्दू में क्या है, कुरान पाक को पढ़ के लोगों को गुमराह करते हैं, इसी तरह ये जो अपने आप को ये मोहम्मद शेख हो गया या ये गामदी वगैरह ये आगे पीछे, ये भी इसी तरह कहते हैं, ये कहते हैं हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, हदीसों को नहीं मानते। तो भाई आप फिर कुरान को क्यों मानते हो? क्योंकि जिनके कुरान को भी ऊपर मान ले, मेरे कुरानिस्ट के साथ कितनी डिबेट्स हुई हैं, इनको पता ही कोई नहीं है। वो इनका एक महमूद नाम का है
तो मैंने, वो कह रहा है जी कुरान के ऊपर मैं कहा चलो कुरान करते हैं। मैंने कहा कुरान कौन सी जुबान में है? कहने लगा अरबी में। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा महमूद। मैंने कहा तेरा महमूद कौन सा सीख है बता। चल ओ खोती ओदी फंसी बेचारे दी, वो नाम का जिसको मतलब नहीं पता, उसको पता ही नहीं है, तो कुरान वो खे समझेगा? बताओ यार, कुरान तो टोटली अरबी के अंदर है भाई। हम कहते कुरान पे ही बात कर लो यार, आओ करो तो सही। पता ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं, जाहिल है मुतलक, बिल्कुल परले दर्जे के जाहिल। और वो अल्लाह रहम करे, वो उमर बाब के ऊपर, वो उसकी बराड़ के ऊपर ही घुस के जाते हैं। और वो बस अजीबो गरीब सूरत हाल बनी, अल्लाह ही माफ करे, बस क्या बंदा करे। असल इन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है। अभी एक और नई बात निकली हुई है कि जी वो यूके में जो हुआ था, वो ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 7 सितंबर को, जहाँ पे पीर उलमा को इस बंदे ने गालियाँ दी हुई थी, अली लंदन ने ना। तो इन लोगों ने ही उनको बुलाया था और उनको पता नहीं था, ठीक है। तो अब ये है कि जब उलमा को पता ही नहीं है कि वो बंदे अपने दर्स से, घर घर से किसी महफिल पर जाके, या किताबें उन्होंने लिखनी है या अपने बच्चों को पढ़ाना, इससे अलावा उनको अगर नहीं पता तो ये तो बताना दूसरे बंदों का फ़र्ज़ बनता था ना, ठीक है। तो अब वो आए हैं, उनको नहीं था पता। अब वो कई ऐसे उलमा हैं जो नाराज़ भी हो रहे थे यूके के, क्योंकि इन लोगों ने तो तमाम उलमा अहले सुन्नत को गालियाँ दी हुई हैं, और वहाँ पे इन्होंने पैसे लेके लोगों को सर्टिफिकेट दिए हैं जनाब जी के जड़ा ना वो जी ख़त्म नबूवत का काम करने वाले। वो नवा कट्टा खुल गया, ठीक है जी। वो कट्टा खुले है कि जिन्होंने बंदियां नूं सर्टिफिकेट पीर अजमल कादरी से दिलवाए हैं सर्टिफिकेट? नहीं, वो आए थे वैसे तो, सर्टिफिकेट तो अपने बंदों से दिलवाए हैं नॉर्मल। तो वो फिर नवा कट्टा खुलिया था उत्थे भाई जी, हुण की बंदा उत्थे करे। उत्थे बंदे कहंदे जी मौलवी है कर दे, हुण मौलवियों नूं बेचारे नूं की पता है। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, आपको तो ये तमाम चीज़ों का पता है। अब जो दूसरे उलमा कराम जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको नहीं पता ये बंदे कौन है। बात ये पता है क्या मलक, बड़े मामलात हैं ये इसी तरह के कुछ मामलात हैं कि मैं स्टेज से दूर रहता हूँ, स्टेज के करीब ना। यहाँ अभी पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों के अंदर मुझे मदऊ किया गया, हत्ता कि मुझे यानी सदारत तक से नवाजा गया। कोरा चिट्टा यकीन जानो जवाब दे दिया ना। मैं ना भाई ना, स्टेज के कोल मैं जाने नहीं। तो जी इश्तिहार तस्वीरां खिंचनियां ने, इश्तिहारां दे लानियां ने, ये करना। मैं कहना भाई मैं आने ही नहीं। ये रोले हैं, बड़े रोले हैं, उफो स्टेज के अपने रोले हैं। ये ऐसे, ये यकीन जानो हम इन चक्करों में पड़ गए ना, तो ये थोड़ा बहुत काम जो ना इत्थों भी जांदे ना ऐसा किसी जोगे भी नहीं। ए भाई जी आराम ना सिर सुट के लगे हैं, ये ठीक है बस। सानू इन्ना भाई जी वड्डे चक्करां च पैण दी लोड़ कोई नहीं। बंदा पूछे कि सर्टिफिकेट लैण दे नाल की हो जांदा, सर्टिफिकेट लैण दे नाल की हो जांदा। हाँ जो मालक आप जे कोई नजर इनायत करन फिर ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ करना उन्होंने। चलो कोई नहीं यार, देखो मलक, एक तो वो कि किसी बंदे की हमारे साथ कोई रंजिश है, ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं बशर शाह के साथ ही रंजिश है ना, या अली मलक के साथ ही रंजिश है ना, कोई बात नहीं। लेकिन वो काम अगर करता है ना खत्म नबूवत का या दीन का, दीन के और बड़े शोबे हैं, किसी भी शोबे में कोई करता है खिदमत, ठीक है, अच्छा काम है यार। रंजिश तो हमारे साथ है ना, कोई मसला नहीं। तो हम उस फेल की वजह से उस रंजिश को भी बुला देंगे, कोई बात नहीं, ये हमारे साथ ही है ना, कर तो दीन का ही काम रहा है ना यार, तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम उधर आती है कि वो खुद भी नहीं करता और हमें भी नहीं करने देता। हाँ
तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती यार, यहाँ तो तू साड़ियां लत्तां ते खिंचना पे अल्लाह दे बंदिया, खुद कर लेना फिर तू। ठीक है, असं पिछे हट जाने, कोई गल नहीं, तू कर। बिल्कुल। तो ये वाले मामले हैं, अपना तो कोई ज़रफ ऐसा ही है। ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। हाँ, ना करन देना, ना खेडना, ना खेडन देना। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸਨ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਸੂਸ ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਲਕ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਲਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਸਨ ਜ਼ਨ ਰੱਖੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਾ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਨਾ ਬਈ ਯਾਰ ਮਲਕ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਜੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਿਗਨਲ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮਲਕ BCN। नहीं मैं नहीं चुकिया। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा यार, आप जनाब बैठो ते टाइम काफी हो गया थे, मैनू इजाजत दियो। किसी दोस्त ने कोई गल करनी भाई, इजाजत है, मैं जाना चाह रही हूँ। उस्ताद मोहतरम मैं तो आपको देख के आया हूँ इधर। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह जी, मेहरबानी। बैठो, मलक भाई प्यारे आंदे कोल बवो ते कोई गलबात करो ते मैनू इजाजत दिओ, मैं काफी देर दा बैठा हां असल जी। बेहतर बहुत शुक्रिया। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।